सप्लीमेंट्री ड्यू है। वही मैं कह रहा हूं, मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं तस्वीर रखिए, वक्त ज़ाया होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप क्या कहिए राजन साहब? क्या नारे के लिए करा साहब? AQ number 1056. Minister in charge of revenue. Sir, AQ number 1056. The decision regarding execution of project was taken during the Chorus of District Development Board meeting held on 4/10/2017 under the chairmanship of Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir State, Chairman District Development Board, and circulated by District Development Commissioner Srinagar Wide number DDC/DE/72068 dated 29/8/2021. The work on this project, namely construction of mini secretariat at Batmalu, began in the year 2018 within a technical vetted cost of rupees 48.23 crore. An amount of rupees 1.00 crore was released for the project, against which rupees 0.82 crore stands incurred. Further, during the current financial year, an amount of rupees 9.00 crore approximately stands incurred. Thus, the total expenditure incurred on the project so far is rupees 9.82 crore approximately per tenant. To mention here that the pile foundation work of the project has been completed so far. Now, the executing agency has submitted a revised DPR amounting to rupees 80.26 crore, and the same is under consideration in the department. Sir, I fully agree with the reply. But the spirit behind my asking this question was not seeking the details, because I know about the details. The spirit behind of this question is to highlight the work culture prevalent in the state at the moment. Sir, this project was started in the year, sanctioned in the year 2017 and started in the year 2018 with a cost of 48.23 crores. This year, the project was funded by another 9 crores. That means 9.82 crores have already been spent on it. In 7 years, it started in 18 and this is 25. In 7 years, the escalation cost has gone more than 90%. And if God forbid, it takes another 8 years, another 7 years, the cost will go to 160 crores. So, isn't it a mockery in the name of infrastructure development? I wanted to highlight this as a model case of a mockery system handled by our bureaucrats. Sir, What is the question? I don't have any question. I'm just highlighting it. I said I fully agree with the reply. But I think the government, Honorable Chief Minister is here. He should take note of this. It is not only this particular case. It is the development of the entire state. The mockery going on has to be put a stop somewhere. So that is why Thank you very much. Inspector Sajjadini Ghosh. AQ 650. It's about Patama. Question is about Patama. No. Mini secretary maybe anybody else also, but the question is about Patama only. You can come. नहीं, दूसरी जगहों को कोई जवाब इनके पास नहीं होगा शायद। इनके पास जवाब इनका होगा तो वो सवाल मतदानों के बारे में है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में दूसरे हाँ, ये मैं सुना नहीं है। कोई रेलेवेंट पूछता है उसका कोई नहीं है।
इसे सारे इनिशिएटिव्स के बारे में सवाल नहीं है, सवाल आप सभी के लिए मेरे पास, आप सबके लिए मेरे पास। आपने लिखा मुझे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मगर जो सवाल है, सवाल कहीं और का है, तो आप जवाब पूछ रहे हैं अपनी कांग्रेस से, वो जवाब मिनिस्टर के पास नहीं होगा। मिनिस्टर के पास यही जवाब होगा जो उसे सवाल पूछा जाए। कोई जो रेवन्यू ग्रांट होगी उस वक्त आपको मौके देने की बोलेंगे। यदि रेवन्यू ग्रांट करेंगे आज हजार सवाल पूछे इसको किसी की इजाजत नहीं देगी, कोई दूसरा ठीक होता है। Sir, appeal number 650, Vision of Government Brothers and Hazara Medical College or flood risk number 1. Unprecedented floods have been reported in the recent times on 29th March of 2024, 16th April 2024 and on 28/4/2004 when the maximum flood level recorded was 0.6 meter, 3.8 meter and 4.0 meter respectively. Above ground level are at the right bank of Nala Kuru or the Sir, yes, sir. Honorable Speaker, sir, for a change, मैं मुतमईन हूँ इस सवाल से जवाब से और डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार उन्हें बहुत कहना चाहिए। तो लेकिन सर दो बातें हैं स्पीकर सर, मैं मिनिस्टर साहबा को भी रिक्वेस्ट करूँगा, दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ये इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आता है और कॉस्ट भी आता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब चले गए, मैंने सोचा था मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि अगर कोऑर्डिनेशन में लेते, अदरवाइज इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर ये कोऑर्डिनेशन में नहीं लेंगे बिकॉज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, फिर स्कॉस्ट के वाइस चांसलर साहब हैं, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होगी। अब दो बातें हैं इसमें, एक रिकग्निशन का मामला है, इट कांट गो ऑन एंडलेसली, टाइम माइट कम गॉड फॉरबिड कि कभी वो रिकग्निशन पर मामला न पड़े। और दूसरा मिनिस्टर साहबा, इट इज़ अबाउट जो फंडिंग है वो मार्च 2025 को उसमें भी अगर आप करें, बट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये कोऑर्डिनेशन में लें और ये लैंड का मसला जल्द करें। थैंक्स फॉर थैंक यू। सर ये मेडिकल कॉलेज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लिए और जहाँ पे साइट इसकी वहाँ पे सेलेक्ट की गई थी वो फिजिबल नहीं, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा और ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के लिए जो फीडिंग हॉस्टल्स है सर, तो इस मेडिकल कॉलेज के लिए जो फीडिंग हॉस्टल्स है वो करना, केरियन, मछल के एरिया से लेकर बाकी हॉस्टल जो कुपवारा के एरिया पूरे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, लोगों की डिमांड है। ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हंदवाड़ा और कुपवारा के दरमियान कोई भी जगह है सेलेक्ट की जाए, क्योंकि ज़मीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों कुपवारा और हंदवाड़ा के दरमियान ही कहीं पर जगह सेलेक्ट की जाए ताकि कुपवारा एरिया को भी इस मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा हो और हंदवाड़ा एरिया को इस मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा हो। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से यही कि जब भी आप सेलेक्ट करने जाएंगे इसके लिए साइट, तो कुपवारा और हंदवाड़ा के दरमियान कोई भी साइट देख लीजिए जो फिजिबल होगी आपके लिए, तो वहाँ होनी चाहिए ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। जो एग्जिस्टिंग साइट है सर, जहाँ जीएमसी हंदवाड़ा बन रहा है वो इस वक्त नंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो मेरा एक तो ये सवाल रहेगा सर कि जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है एसडीएच नंगेट, तो वो फंक्शनल क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। और दूसरा, अगर आप इस मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जो जहाँ पे ये बन रहा था वहाँ पे जो लॉसेस हुए, जो वहाँ पे फार्मर्स ने जो अपने पेड़ काटे, उन्होंने जो जमीन छोड़ी, तो उसके लिए उनको कोई कंपेंसेशन नहीं मिला। और एक कमेटी बनाई जाए
कि जहां वो जो वहां पे अभी तक का जो एक्सपेंडिचर है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन रहेगा ऑनरेबल मिनिस्टर को। अगर आप इसको शिफ्ट करा कुछ बोलो इसमें। अगर बोलना चाहती हूँ जी। सर मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मेंबर्स जो ताल्लुक़ रखते हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट एंड हंदवारा डिस्ट्रिक्ट से। मेडिकल कॉलेज जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो सेंक्शन हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से जो साइट उसके लिए मुकर्रर की गई थी वो बिल्कुल फ्लड प्रोन एरिया में जो है आइडेंटिफाई की गई थी। ये जानते हैं इस चीज़ को। जब पैसा लगाया जा रहा था लगभग 40 करोड़ के मुताबिक जो है पैसा खर्च किया गया था। और जब मुझे मौका मिला, मैं जब एग्जामिन कर रही थी, मीटिंग कर रही थी, मीटिंग में मुझे पता चला कि हिंदवारा के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं वहाँ चली गई और जब मैंने वो साइट देखी मुझे लगा कि 40 करोड़ पैसा जो है टोटल ज़ाया किया गया है। ये पैसा कहीं लगा नहीं है। जो कॉलेज बन रहा था जिसमें कुछ भी थोड़ी सी जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जब कभी भी थोड़ा सा भी फ्लड आ जाता तो वो बह जाता, और जब खुदा न खास्ता अगर कॉलेज फंक्शनल हो जाता तो बच्चों को भी खतरा था, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी खतरा था, और जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इतने पैसे इसमें लाए गए, जो पैसे आए वो भी ज़ाया हो जाते। जब मैं वापस आई तो मैंने एक कमेटी मुकर्रर की है। मैंने कहा इस कॉलेज की जो लोकेशन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, और फिर उस कमेटी में हमने सबसे सजेशंस लिए हैं। उस कमेटी में हेल्थ सेक्रेटरी को बनाया गया और इसी तरह स्वास्थ्य से लिए गए, एग्रीकल्चर से लिए गए, वहाँ के कंसर्न प्रिंसिपल को रखा गया। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करूँगी कि मेडिकल कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मत ले लीजिए। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा इदारा होता है जिससे सबको फ़ायदा मिल सकता है, जो भी आसपास के वहाँ